ابھی میں نے عدالتی خلا پہ نا انجینئر صاحب کا منجن 2 چیزوں کا بکتا ہے. ایک منجن بکتا ہے چشتی رسول اللہ, اشرف علی رسول اللہ, صحیح ہے نا. حالانکہ علماء اس کا بھی جواب دے چکے ہیں کہ اگر واقعی کلمہ پڑھایا تھا تو ان کو کافر بولو آپ, اور اگر کافر نہیں بولتے تو آپ کیا تعویل کرتے ہو وہ بتا دو آپ. سمجھ میں آ رہی ہے بات بھائی؟ چشتی رسول اللہ نے اگر کلمہ پڑھایا تھا اور اشرف علی تھانوی رسول نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تھا کہ اشرف علی رسول اللہ, تو کلمہ پڑھانے سے انسان مسلمان رہتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے؟ بولو نا, کافر ہو جاتا ہے. تو آپ صاف لفظوں میں بولو کہ چشتی بھی کافر تھے معاذ اللہ, اشرف علی تھانوی بھی کافر تھے, اور جو ان کو بزرگ مانتے ہیں یہ حقیقت جاننے کے باوجود وہ بھی پھر کیا ہے؟ کافر ہیں. اور اگر کہتے ہو نہیں وہ کافر نہیں ہے تو کیوں, کیا تعویل کیا کر رہے ہو آپ اس کی؟ ہمارے پاس تو تعویل ہے, آپ بتاؤ آپ کے پاس کیا تعویل ہے؟ تو منہ سے پھوٹتے کیوں نہیں ہو آپ, چپ کیوں بیٹھے ہو؟ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جب بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے نا, دعویٰ کورٹ میں جب بھی آپ جائیں گے نا دعویٰ, تو وکیل جرا کر کے اس دعوے کی تنقید کرتے ہیں کہ آپ کا دعویٰ ہے کیا. آپ اگر خود ایک جگہ پہ ٹکے ہوئے نہیں ہو تو ایسے جاہلوں سے دنیا میں کبھی بھی بحث نہیں کی جاتی, کبھی بھی بحث نہیں کی جاتی. تو آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ آپ بولو نا, پھر کانفیڈنٹلی بولو کہ چشتی رسول اللہ بھی کافر تھے جنہوں نے رسول اللہ بلوایا, یعنی اور اشرف علی تھانوی بھی کیا تھے؟ اپنے نام کا کلمہ پڑھا کے انسان مسلمان رہتا ہے, وہ لوگ کافر تھے. اور اگر کفر سے بچانے کے لیے کوئی تعویل کر رہے ہو آپ, بعض دفعہ جملہ کفریہ ہوتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں اس کی یہ تعویل ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو کافر نہیں کہتے, تو پھر وہ تعویل کیا ہے؟ کس بیس پہ آپ کہہ رہے ہو کہ یہ کافر نہیں ہے؟ اور ان کو ماننے والے بھی کہا, میں تو اشرف علی تھانوی کو صرف مسلمان نہیں بہت بڑا بزرگ مانتا ہوں. تو انجینئر علی مرزا کو چاہیے مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگائے, یہ بکواس مت کرے, ڈرامے بازی چھوڑ دے کہ نہیں جی میں کسی کو کافر نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتے؟ آپ کے دعووں میں تضاد ہے. پھر اب بولو یار کلمہ پڑھائے تو کافر ہے وہ. دیکھو مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا, میں بانگے دوہل کہتا ہوں کہ کافر تھا. جو اس کو مسلمان مانے وہ بھی کیا ہے؟ کافر ہے. اس سے نکاح بھی جائز نہیں ہے, اس کے پیچھے نماز بھی حرام اور ناجائز ہے. اگر کلمہ پڑھایا تھا, اگر یہ آپ مانتے ہو کہ یہ صحیح سند سے ثابت ہے, یہ اوتھینٹک کتاب سے ثابت ہے, اور آپ پھر پیش بھی کر رہے ہو مولوی تھانوی نے اس کی تعویل کی ہے, اس نے تعویل پیش کی ہے نا کہ مولوی تھانوی نے اس کی تعویل کی ہے, تو آپ اگر اس تعویل کو نہیں مانتے تو پھر آپ بولو وہ بھی کافر, اشرف علی تھانوی بھی کافر, پھر اور جو ان کو بزرگ مانے وہ بھی کیا ہے؟ کافر ہے. کمبخت تو ایک جگہ ٹکتا ہے نہیں, تو ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں, ہم اپنا ٹائم تیرے جیسے فضول آدمی کے سامنے پیش کریں. دوسرا منجن انجینئر علی مرزا کا بکتا ہے علماء دیوبند کے عقیدے. جب پھنسے گا نا یہ پہلے فضول بکواس کرے گا, رفع الیدین پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی حدیث صحیح نہیں ہے, کسی نے ترمذی کی حدیث کو صحیح نہیں کہا. جب ہم بات کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں رفع الیدین پر بات کے لیے آ رہا ہوں, بھائی اپنے عقیدوں کو پہلے صحیح ثابت کرو. رفع الیدین کی بحث تو ہم اس سے کریں گے جس کے عقیدے صحیح ہوگے. کمبخت پھر تو بحث کیوں کر رہا تھا؟ تو نے ریکارڈ کیوں کروایا؟ یہ تو نے قادیانیوں کے لیے کلپ ریکارڈ کروایا رفع الیدین والا. ایک رفع الیدین پر تو علماء دیوبند کو, حنفیوں کو اتنا برا بلا کہہ رہا ہے, جب وہ جواب دینے پہ آتے تو کہہ رہے پہلے کس پہ بات ہوگی؟ عقیدے پہ بات ہوگی. تمہارے تو عقیدے ٹھیک نہیں ہے, جب عقیدے ٹھیک نہیں ہے تو پہلے عقیدوں کی بات کرتا نا. رفع الیدین کو بیچ میں تم نے کیوں گھسیڑا ہے؟ پھر تراویح کی بات لے کر آیا, میں نے کہا بھائی تراویح پر بات کروں گا, نہیں جی پہلے المحند المفند پہ بات ہوگی. پھر کیا ہوا؟ ہم نے کہا ساری بحثیں ختم کر کے ہم نے کہا چلو کس پہ بات ہوگی؟ المحند المفند پہ. اور اس نے کہا کہ آپ جہلم آ جائیں, میں نے کہا چلو میں آ گیا, المحند پہ بات ہوگی. کہہ رہے ہیں آپ بغیر بتائے کیوں آئے ہو؟ میں تو اتوار کے دن, میں تو بکواس نہیں ہے تو اور کیا. میں تو حیران ہوتا ہوں تم لوگ اس کو سن کے ڈپریشن میں کیوں نہیں جاتے. تو فضول آدمی جو کمبخت کبھی کسی ایک جگہ ٹکا ہی نہ ہو, اور میں المحند پہ آ گیا نا, انجینئر کو میں بتا رہا ہوں ایسا بھاگے گا نا تو, جیسے خلا کے مسئلے پر تجھے چپ سون گئی ہے نا. خلا پہ میں نے 1 گھنٹے کا کلپ ریکارڈ کروایا نا, اس کے پاس سے ایسا خاموش ہے اور اتنا بڑا جھوٹ بولا اس شخص نے. اس نے کہا ہے کہ مفتی صاحب نے اپنا نوالا میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. میں نے تو یہ دعویٰ کیا ہی نہیں. یار تم صبح و شام پوڈ کاسٹ میں بھی کہہ رہے ہو کہ عورت یک طرفہ خلا لے سکتی ہے, شوہر راضی نہ بھی ہو تو بھی خلا لے سکتی ہے. صبح و شام تمہارے دعوے, میں نے تمہارے کلپ چلائے, اور تم پھر کس منہ سے کہہ رہے ہو کہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہے. اور کیسے بے شرم لوگ ہیں جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیوں نہیں پوچھتے کہ یار ہم تجھ سے قرآن و سنت سیکھنے کے لیے آتے ہیں, مفتی صاحب نے 1 گھنٹے کا خلا کا ریکارڈ کروایا, تو اس کا ترجمہ تو نے غلط کیوں کیا آیت کا؟ اس کا تو پہلے جواب دینا, پھر ہم تجھے آگے چلنے دیں گے. اور یہ تو نے کیسے زنا کے اڈے کھول دیے کہ جب چاہے عورت کو طلاق دے سکتا ہے, اگرچہ گناہ ہوگا لیکن دے سکتا ہے, یہ کیسے تو نے کہہ دیا؟ اب اس کا جواب دینا. اسی طرح سے ریکارڈ کروانا جیسے مفتی صاحب نے ریکارڈ کروایا ہے. سامنے بیٹھے ہوئے بھی, جیسے قرآن کہتے ہیں نا ضعف الطالب والمطلوب, جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ بھی کمزور لچڑ, اور وہ بت بھی کیا ہے؟ کمزور اور لچڑ. جو سامنے بیٹھے ہوئے وہ بھی اندھے مقلد اور یہ بھی اندھا آدمی ہے. تو پینترے بدلنے کا ماسٹر ہے.
जब किसी मसले का जवाब दो पहले ही इस पे बहस होगी। फिर हम गए ना, जेलम सारी दुनिया को पता है, तुम्हारी दावत तय किया था मैं, तुम्हारे क्लिप लोगों ने तुम्हें गैरत दिलाने के लिए चलाए कि मुफ्ती साहब की करामत होगी, कभी भी नहीं आएंगे। फिर मैंने मुझे पता था ये बहुत शरारती है, बहुत होशियार आदमी है, ये मौका भागने का तलाश करेगा, इसलिए मैंने जेहलम जाती इसके घर नहीं पहुंच गया। मैं घर चला जाता, कहता मैं तो नानी के गया हुआ हूं। ये करना था इस इंसान ने, ये कहता मैं तो पप्पू का गया हुआ हूं, मुझे क्या पता था। इसलिए मैंने जाके रिकॉर्ड करवाया। मैंने कहा 48 आवर्स में आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स देख दें कि मैं बैठने के लिए तैयार हूं। आप टाइम बता दें, दिन बता दें, अगला हफ्ता होगा, 4 दिन के बाद होगा, इससे ज्यादा फेयर कोई हो नहीं सकता। और मैंने बात ये की कि हजरत मुआविया और अल-मुहन्नद, रफुल-दैन तो मैं लाया ही नहीं। मैंने कहा बात किस पर होगी? अल-मुहन्नद पे। खुदा की कसम, जिसमें कॉन्फिडेंस होता है ना अपने अकीदों के सही होने का, वो इस तरह बबांगे दोहल जाता है, खुलेआम वीडियो रिकॉर्ड करवा के चैनल पे डालता है, 48 घंटे का टाइम देता है, भागने के रास्ते रोक देता है, पूरा आपको हक देता है आप ही के शहर में जाके। और जिसके दिल में काला होता है, जिसके दिल में चोर होता है, जिसने सिवाय फजूल बातों के कुछ भी नहीं करना, वो भागता है ऐसे मौके पे। तो ये जो कह रहे हैं ना, मैं इसको पक्का कर रहा हूँ, ये जो बार बार कह रहे हैं ना खुला वुला नहीं, ये तो फरोई मसाइल हैं, रफुल-दैन नहीं है, तो मैं अल-मुहन्नद पे मैं इसको लड़के मुझे कह रहे रिकॉर्ड करवा दो, मैंने कहा इसको खूब पक्का होने दो पहले, बार बार इसके मुंह से कहलवाऊंगा अल-मुहन्नद, उसके बाद मैं अल-मुहन्नद पे तुझे जो जलील करने वाला हूं ना, तू कौम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। लेकिन तेरे सामने जो कौम बैठती है ना, वो तुझसे भी ज्यादा जलील है। वो कहती है भाई जितना मर्जी जलील कर लो, हमने इंजीनियर के नाम का कलमा पढ़ लिया, और अल-मुहन्नद पे भी मैं इसको जलील करने वाला हूँ इंशाल्लाह। अल-मुहन्नद पे तो हम जब गए थे ना जेलम, तो पूरा रजिस्टर हमारा तैयार था, पूरे इसके क्लिप निकाल के रखे हुए थे, पूरे अकायद पर जो भी दलाइल हैं सारे तय, वो तो हमें तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है। उस पर तो मैं टक टक इसकी क्लिप चलाऊंगा और दलाइल पेश करूंगा, ये भागने के काबिल नहीं रहेगा। लेकिन खुला वाले मसले पर हमें अंदाजा हो गया कि इसके जो फैंस है ना, वो इंतहाई दर्जे के ठीक, वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये खुला का मसला जो तुम है, को फरोई मसला था ये छोटा सा, सेना का मसला है भाई। अगर इस्लाम के मुताबिक तलाक नहीं हो रही है और आपने कह दिया कि हो गई है, इसका मतलब जब किसी और मर्द से निकाह करेगी वो जिना कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? आप औरतों के लिए जिना के अड्डे खोल दिए और आप कहते छोटे छोटे मसाइल हैं, छोटे छोटे मसाइल हैं यार। और कमाल देखो, ये समझते हम गुन्ने हैं, हम तो देख ही नहीं रहे। ऑफिशियल चैनल से रिकॉर्ड नहीं करवा रहा खुला पे रिप्लाई, पीछे एक बंदा बिठाया हुआ कैमरे से मेरी वीडियो बना, जैसे मैं नॉर्मली एक बात कर रहा हूँ ना, ठीक है ना, कि मैंने तो खुला पे ये कहा ही नहीं है। इसका एक फैन का वीडियो क्लिप आया था मेरे खुला वाले मसले से पहले, और कहा था कि देखें मुफ्ती साहब अभी क्या बात करते हैं कुरान और हदीस के रेफरेंस के साथ, देखते हैं ताकि हमें भी तो पता चले कुरान हदीस क्या है, काश पहले कर लेते। तो फिर जब मेरा क्लिप आया है ना, तो मैंने कहा देखें ये जवाब में कि कोई पी गया बैठा, कल आया परसों कोई क्लिप और कहा मुफ्ती साहब को चाहिए इंजीनियर से माफी मांगे। मुझे अंदाजा हुआ, मैंने कहा ये बड़ी ढीठ नस्ल है यार, ये क्या है, ये बहुत ही कोई ढीठ नस्ल है, इसके फैंस भी और ये खुद तो है ही बहुत ही कोई ढीठ नस्ल अल्लाह ने पैदा की है। भाई तुम मुहन्नद अल-मुफन्नद का मुकाबला नहीं कर सकते, जब मैं बताऊंगा तो आपको पता चलेगा उलमा देवबंद के बड़े ही खानदानी अकायद है, बड़े ही खानदान। तो ऐसे ही थोड़ी पूरी दुनिया में अल्लाह ने उलमा देवबंद से काम लिया है। पूरी दुनिया में तुम जहां जाओगे ना, उलमा देवबंद के मदारिस नजर आएंगे तुम्हें, पूरी दुनिया में। साउथ अफ्रीका में तनातन भरे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में भरे हुए हैं, लंदन में तो इतने मदरसे उलमा देवबंद ने बनाए हैं कि फ्रांस में अगर कोई मुफ्ती मिलेगा ना, कहां से आया, कह रहे लंदन से पढ़ के आ रहा हूँ। जर्मनी में कोई मुफ्ती मिलेगा, कहां से आ रहे, कह रहे लंदन से। मैंने कहा लंदन में कब से मुफ्ती बनाना शुरू हो गए, ठीक है ना, कह रहे उलमा ने बनाए। पूरी दुनिया में काम लिया है अल्लाह ने, तो वो गलत अकीदे रखे, तो कुछ अकीदों में इसने डंडी मारी है, कुछ अकीदों में इसने क्या किया है, डंडी मारी है। तो ये जो बहुत खुश हो रहा है ना कि ये जवाब नहीं दे सकते, ये जवाब नहीं दे सकते, तो मैं इसको पक्का होने दे रहा हूँ, इंशाल्लाह उसका जवाब आएगा। लेकिन इसकी जो ढीठ कौम है ना, वो नहीं मानेगी, वो बड़ी ही, तो ये दावे पे टिकता नहीं है। इसका सबसे बड़ा फॉल्ट पता है क्या है, तभी सामने बैठने से भागता है। क्यों? सामने जब बैठेगा ना, तो जिसने इसको टिकाना होगा वो अपनी बात रिपीट करता रहेगा कि सर ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं हुआ, सर ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं हुआ, सर ये मेरे सवाल का, बार बार रिपीट करेगा, तो फिर आदमी फंस जाता है। तो ये सामने इसलिए नहीं बैठता, ये ऑनलाइन खेलता है कि यहाँ से हमने जब जवाब दिया तो वो जवाब ही पी गया, घुमा दी बात को, कुछ और जवाब दे दिया, यहाँ से उन्हें वो कुछ और हो गया। तो एक मुर्गों की लड़ाई हो जाती है। ऑनलाइन भी ये फेस टू फेस बैठने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वहां भी आप पकड़ सकते हैं कोई सालिसी का किरदार अदा करता है। तो इसलिए ये बंदा, इसका कोई नजरिया नहीं है, किसी एक जगह ये टिका हुआ नहीं है, इसका काम है तकरीबकारी, बस वही है शीरा लगा के लड़वा के चले जाओ, तो कोई टिकता नहीं है। तो मैं बात दोबारा कहता हूँ, दोबारा चिश्ती रसूलुल्लाह शरफ़ी रसूलुल्लाह पे आ गया, तो मैं उसका जवाब ही रिकॉर्ड करवा रहा हूँ अभी। इंजीनियर साहब से कह रहा हूँ कि आप बताओ, अगर चिश्ती ने अपने नाम का कलमा पढ़ाया है और मौलाना शरीफ थानवी ने अपने नाम का कलमा पढ़ाया है, तो आप बताओ वो काफिर थे या नहीं थे? अगर थे
तो फिर मैं भी काफिर हूँ। फिर उलमा देवबंद मौलाना थानवी को बुजुर्ग समझते हैं, वो भी काफिर हैं। और अगर नहीं थे तो आप क्या तावील करते हो, पहले आप वो खुद कर लो, वो खुद तावील कर लो आप। तो जो तावील आपकी होगी ना वही किसकी होगी, हमारी भी फिर वही है, फिर हमें जरूरत ही नहीं है। आप बता दो क्या तावील है, आपको पता है कि इसकी तावील है, आप फंस गए हो क्योंकि इतने बड़े बड़े चैलेंज कर दिए। अब आपके लिए रिवर्स होना क्या हो गया है, बहुत मुश्किल हो। इसको करामत के बारे में तुम्हारा क्या नजरिया हो गया ना, मुर्दा निकल के आ गया, मदद करके कब्र में वापस चला गया, तुम्हारा करामत के बारे में कॉन्सेप्ट है क्या, करामत की डेफिनेशन क्या है? क्या नबी के दुनिया से जाने के बाद करामत का वजूद खत्म हो गया है? करामत अगर मुस्तनद जरिए से साबित हो तो भी उसका इनकार किया जाएगा, या करामत की कोई लिमिट है कि इस हद तक तो करामत हो सकती है, इससे आगे नहीं हो सकती? आप पहले करामत के बारे में, ये ऑनलाइन हो ना, ये सामने बैठे तो मुनाजरों में, बहस में सबसे पहले दावा रिटर्न में लिखवाया जाता है। वो सिद्दीक आया था ना, आप सिद्दीक क्या नाम है, उससे मैं बार बार क्या कह रहा था तकलीद के बारे में, किसी जगह टिको तो सही, तुम्हारा तकलीद की डेफिनेशन क्या है और उसके बारे में नजरिया क्या है, क्योंकि इस तरह पेंतरे बदलते हैं लोग, तो घुमाते हैं बात को। दुनिया में कहीं भी ऐसा डिबेट नहीं होती कि आप अपना दावा तनकीह ना करो, मुनक्का ना करो और आप जो है फेंकते रहो बैठ के, तो कभी भी कोई बहस अंजाम तक इस तरीके से नहीं पहुंचती। आप करामत के बारे में क्या आपका नजरिया है, तो ये आपको जवाब देना पड़ेगा, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि आपका वही नजरिया है जो हमारा है। लेकिन जब वो देवबंदियों के अगेंस्ट जा रहा होता है तो फिर आपका वो नजरिया नहीं होता, जब उनके फेवर में जा रहा होता है तो फिर आपका, जब अगेंस्ट जा रहा होता है तो फिर वो आपका नजरिया नहीं होता, फेवर में जा रहा होता है तो आपका भी वही नजरिया होता है। तो ये किसी एक जगह टिकने वाला आदमी नहीं। हजरत मुआविया के बारे में भी कितनी दफा जवाब रिकॉर्ड करवा चुके हैं, लेकिन बंदा टिके तो सही ना एक जगह। मैंने भी कहा नहीं है कि यार हजरत मुआविया को फिर आप क्यों नहीं मानते फासिक? हजरत अली के खिलाफ अगर वो तलवार उठा रहे हैं और नाजायज तलवार उठा रहे हैं, हम तो कह रहे दिफा में उठाई है और इज्तिहादी गलती में। आप अगर इज्तिहादी नहीं मानते तो आप बोलो ना फासिक है वो। फिर इमाम बुखारी ने उनसे हदीस लेकर गलत किया, इमाम बुखारी को बोलो मैं नहीं मानता। ये तो मुनाफिकत है कि इमाम बुखारी को चूंकि आपने बाबा बना लिया है, तो जहां इमाम बुखारी को फेवर जाएगा वहां आप मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आदिल कहते हो, जहां इमाम बुखारी के फेवर नहीं जा रहा वहां पैंतरा बदल लेते हो। तो आपको तो एक जगह टिकते ही नहीं होगा। शिया इसमें साफ कहते हैं हम इमाम बुखारी को नहीं मानते। इमाम बुखारी जो हजरत मुआविया से हदीस लाए हैं, शिया कहता है गलत किया, हजरत मुआविया से हदीस लेना जायज नहीं है। आप दोनों तरफ से पेड़े खा रहे हो, ठीक है ना। मुआविया को बुरा भला भी कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, और उनको रज़ी अल्लाह अन्हु भी लगा रहे हो उनके साथ, और फिर हम कहते हैं आप रज़ी अल्लाह अन्हु लगा के क्या तावील कर रहे हो उनके अमल की? तावील आप करते नहीं हो, क्योंकि अगर आप तावील करोगे तो हजरत मुआविया की मुखालफत का फिर आपके पास कोई रास्ता रहेगा नहीं। ना आप तावील कर रहे हो, आप कह रहे हो गलत भी किया, फिर रज़ी अल्लाह अन्हु भी लगाने का तकल्लुफ कर रहे हो, फिर उनसे हदीस लेना भी जायज समझ रहे हो, हालांकि गैर आदिल से हदीस सही हदीस नहीं होती। बुखारी में उनकी हदीस आना जायज ही नहीं था, फिर इमाम बुखारी ने कहा था, दावा किया कि मैं अपनी बुखारी में सही हदीसें लेकर आऊंगा, और आदिल की हदीस सही होती है, फासिक की हदीस सही नहीं होती। तो इन सब बातों का आपके पास कोई जवाब नहीं है। तो ऐसे जब तक कोई दावा मुनक्का ना हो भाई, बहस कभी नहीं की जाती है। इसका मतलब आप एक ऐसी जंग में अपने आप को डाल रहे हो जो सिवाय मुर्गों की लड़ाई के और कुछ भी नहीं है। मुर्गे देखने हो तो हमारे आके देख लिया करो, मुर्गे हम लड़ा के दिखा देंगे, ऐसे लड़ते हैं मुर्गे। और मैं अल-मुहन्नद पे भी रिकॉर्ड करवाऊंगा, आप बेफिक्र रहे हैं, उसको बोलने दो, अभी कह रहे देखना और फिर यहाँ से भी भागेगा, फिर पता क्या कहेगा, असल में ये तो उसूली अकीदे नहीं है, असल में तो पहले हजरत मुआविया के मसले पे आना चाहिए। फिर जब हजरत मुआविया पे आएंगे तो कहेगा असल में तो पहले वो कब्र से ठंडी मिलने वाले मसले पे आना चाहिए, ठंडी बठंडी कभी कभी कोई वाक़या है, पहले उस पे आना चाहिए। फिर कहेगा ये तो मदरसों में जो बदकारी होती है, पहले मदरसे तो ठीक करो अपने। फिर हम कहेंगे